Good morning, students. So, in this lecture, we have to discuss trigonometric functions of submultiples. Our topic is trigonometric functions of submultiples. Trigonometric functions of submultiples angle. Submultiple angles. Done. So here our angles will be in terms of x by 2, x by 3, etc. etc. Done. So first we'll write down the formulas for the submultiple angles. So formulas are, suppose cos x is there. So cos x can be written as cos square x by 2 minus sin square x by 2. You have to compare your formulas with the formula that we have studied in our previous lecture. Done. So they are the same formula. In previous lecture we have discussed cos 2x is nothing but the cos square x minus sin square x. So now that multiple 2x is converted into submultiples. Done. So cos x is nothing but the cos square x by 2 minus sin square x by 2, which is also written as 2 cos square x by 2 minus 1, which is also written as 1 minus 2 sin square x by 2, and it is also written as in form of 10, so which is 1 minus 10 square x by 2 upon 1 plus 10 square x by 2. These are the conversions of cos x. Next one is sin x. Suppose whenever we are having sin x, so that sin x can be written as 2 sin x by 2 cos x by 2. Done. And also this sin can be converted into 10, which is 210 x by 2 upon 1 plus 10 square x by 2. These are the conversions of sine. And also we can also convert our 10x into its submultiple. So 10x is nothing but the 210x by 2, 210x by 2 upon 1 minus 10 square x by 2. Done. So these are the formulas for the submultiples angle of trigonometric functions. So first we'll note down this formula and then we'll try to solve the questions based on these formulas. Now students, first question. Here we are given that prove that prove that prove that 1 plus sin a minus cos a, 1 plus sin a minus cos a upon 1 plus sin a, 1 plus sin a plus cos a is equal to 10 a by 2. ये हमें प्रूव करना है. Done. So let's try to prove this one. So we'll start with the left hand side. So given left hand side is 1 plus sin a minus cos a upon 1 plus sin a plus cos a. This is given left hand side. We have to derive this right hand side. Done. So कैसे करेंगे देखो. These are basically higher ordered thinking skill based sums, है ना. तो इतनी easily नहीं होने वाले हैं. देखो इसको कैसे करना है. So here first I am rearranging the term 1 minus cos a plus sin a upon 1 plus cos a plus sin a. सबसे पहले मैंने टर्म्स को रीअरेंज किया. नाउ आई एम कन्वर्टिंग दिस cos a, राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ दिस cos a, है ना. cos a का फॉर्मूला लिख रहा हूँ. तो cos a की फॉर्मूला मैंने लिखा है, आपके नोट में चेक करो. सो हियर what I am changing 1 minus, writing this cos a is a 1 minus 2 sin square a by 2 plus sin a. Done. ये cos a का फॉर्मूला लिखा 1 minus 2 sin square है. एंड नाउ फॉर दिस cos a, दोनों cos a के फॉर्मूला लिख रहा हूँ लेकिन ऊपर अलग नीचे अलग. सो दिस cos a is 2 cos square a by 2 minus 1 plus sin a. Done.
अभी ब्रैकेट को ओपन करो. सो इफ यू ओपन दिस ब्रैकेट इट विल बी 1 - 1 प्लस 2 साइन स्क्वेयर ए बाई टू प्लस, अभी यहाँ पर मैं मल्टीपल सब मल्टीपल का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ. साइन ए इज नथिंग बट दी 2 साइन ए बाई टू cos a by 2 divide by, now here again it's a 1 plus 2 cos square a by 2 minus 1 plus, again sub multiple formula 2 sin a by 2 cos a by 2. क्लियर स्टूडेंट्स, कुछ नहीं किया है ना. cos a का सब मल्टीपल के दो फॉर्मूला थे वो अप्लाई किए और sin का जो सब मल्टीपल फॉर्मूला था वो अप्लाई किया. उससे पहले हमने टर्म्स को रीअरेंज किया. सो नाउ देखो इससे क्या हो गया. सो 1 - 1 0, 1 - 1 0. सो हियर फ्रॉम दिस टू टर्म्स we can take 2 sin a by 2 common. So 2 sin a by 2 is common term and remaining terms square में से एक चला गया, it's a sin a by 2 plus यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, 2 sin चला गया, so cos a by 2. So this one is cos a by 2 divide by, डिनोमीटर में क्या कॉमन लेंगे. सो हियर अगेन देखो यहाँ पर ये तो कट हो गया है, 2 cos square a by 2, 2 sin a by 2 cos a by 2. So we can take 2 cos a by 2 common. So 2 cos a by 2 common. So remaining terms are, कौन सी बचेगी, cos a by 2 plus sin a by 2 will be remaining terms. Done. So here these two terms are equal, so we can cancel out it. 2 से 2 गया, so this one is sin a by 2 upon cos a by 2, and this is nothing but the tan a by 2, which is nothing but the right hand side of our required equation. Done. Hence we prove our left hand side is equal to right hand side. Clear friends? Now question number 2. So here we are given that tan theta by 2 सब मल्टीपल by 2 आ गया. tan theta by 2 is equal to square root of 1 minus e upon 1 plus e into tan phi by 2, and this is tan theta by 2. Then prove that this is given result, and then we have to prove this result. We have to prove cos phi is equal to cos theta minus e upon 1 minus e cos theta. ये प्रूव करना है. क्या करना है? ये प्रूव करना है बच्चों, ये करना है. ये चलो स्टार्ट करें. दिस इज गिवन रिजल्ट, और वी कैन से गिवन एक्सप्रेशन. वी हैव टू डिराइव दिस वन. सो विल स्टार्ट विथ गिवन. सो दिस वन इज गिवन है ना, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया गिवन, और इसमें से मैं है ना tan phi by 2 के फॉर्म में लिख रहा हूँ, बिकॉज वी रिक्वायर cos phi इक्वल टू थीटा के फॉर्म में चाहिए. तो यहाँ पर tan phi by 2 को थीटा के फॉर्म में लिखूंगा. सो tan phi by 2 इज क्या होगा, ये सामने जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो ये ऊपर चला जाएगा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में. सो इट्स 1 प्लस e अपॉन 1 माइनस e इनटू tan थीटा बाय 2 है ना. पहला स्टेप समझ में आ गया. क्रॉस मल्टीप्लाई किया है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, और tan phi by 2 के फॉर्म में लिखा, tan phi by 2 के फॉर्म में लिखा. डन. नाउ वी हैव टू प्रूव दिस वन. सो नाउ व्हाट कैन वी डू? सो नाउ लेट्स ट्राई टू प्रूव दिस वन cos phi है ना. cos phi से स्टार्ट करते हैं, इसको प्रूव करते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के फॉर्म में. सो वी आर गिवन दैट cos phi. नाउ कैन वी राइट cos phi in terms of tan phi? Yes, it's a 1 minus tan square phi by 2 upon 1 plus tan square phi by 2 है ना. इसको रिजल्ट 1 बोलो. सो अवर cos phi is 1 minus tan square phi by 2 upon 1 plus tan square phi by 2 है ना. cos phi का सब मल्टीपल लास्ट में फॉर्मूला लिखा हुआ है cos का, ये लिख दिया. नाउ व्हाट अबाउट दिस tan phi by 2 गिवन है ना, गिवन था.
So here we are using this value from result 1. So it's a 1 minus tan square 5 by 2. ये tan 5 by 2 इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा. इट्स अ 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई, स्क्वायर रूट कैंसिल इनटू tan square theta by 2, tan square theta by 2. ये न्यूमरेटर. Now in denominator we are having 1 plus e upon 1 minus e tan square theta by 2. Done. Now next step. Now this is equal to, now we are converting our tan square theta by 2 into sin and cos. So this one is 1 minus 1 plus e upon 1 minus e. Tan square theta by 2 is nothing but the sin square theta by 2 upon cos square theta by 2. Numerator upon denominator. Denominator is 1 plus e 1 minus e sin square theta by 2 upon cos square theta by 2. ये इक्वल टू इधर आएगा. क्लियर स्टूडेंट्स. नाउ 1 माइनस ई cos स्क्वायर थीटा बाई 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और वो हमारा एलसीएम आ जाएगा, है ना. दोनों प्लेस पर देखो एलसीएम सेम है और वो एलसीएम को हम कट कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद. सो क्या होगा हमारा नेक्स्ट स्टेप. सो नेक्स्ट स्टेप विल बी लाइक दिस, है ना. 1 माइनस ई cos स्क्वायर थीटा बाई 2, cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ये यहाँ से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस ई, सॉरी 1 प्लस ई का मल्टीप्लीकेशन साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 से एंड होल डिवाइड बाई ये आएगा. दोनों में डिनोमिनेटर सेम आएगा, उसको हमने कट कर दिया डायरेक्ट. सो डिवाइड बाई 1 माइनस ई cos स्क्वायर थीटा बाई 2, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 1 प्लस ई साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. डन. चलो ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके ओपन करो. सो दिस वन इज cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस ई cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस ई साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. ब्रैकेट को ओपन कर दिया. डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में इट्स अ cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस ई cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस ई साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. ब्रैकेट को ओपन किया. नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस. नाउ इन न्यूमरेटर we can take cos square theta by 2 sin square theta by 2 together. So it's a cos square theta by 2 minus sin square theta by 2, and from these two terms we can take minus e common. So minus e common, so remaining terms are cos square theta by 2 plus sin square theta by 2. Now in denominator we can take cos square theta by 2 plus sin square theta by 2 together. So it's a cos square theta by 2 plus sin square theta by 2, and here we can take, क्या कॉमन लेंगे, e को कॉमन ले ले, है ना. सो माइनस e को कॉमन ले ले. सो माइनस e इज कॉमन, सो दिस विल बी cos square theta by 2, दिस विल बी माइनस sin square theta by 2. नाउ इसको जरा गौर से देखो. नाउ दिस टू टर्म्स cos square theta by 2 plus sin square theta by 2, that is our identity, sin square theta plus cos square theta. This will be 1, this will be 1, and this one cos square theta by 2 minus sin square theta by 2, that is the sub multiple of cos theta. So this one is cos theta, this one is 1, again this one is cos theta. So our final answer is cos square theta by 2 minus sin square theta by 2 is nothing but the cos theta minus e, cos theta minus e, and this will be 1, है ना. ये पूरा ब्रैकेट 1 हो गया, देखो, अपॉन ये पूरा 1 माइनस ई, दिस इज अगेन cos थीटा. डन. सो चेक करो राइट हैंड साइड. cos फाई इक्वल टू cos थीटा माइनस ई अपॉन 1 माइनस ई cos थीटा. डन. सो cos फाई इक्वल टू दिस वन that we have proved by using this result. Done. So this is again HOTS.
So take a screenshot of this. Now students, question number 3. Again, very good question is there. So here third question is there. So here we are given that if cos theta equal to, if cos theta equal to cos alpha cos beta, cos alpha cos beta, then prove that what we have to prove that tan theta plus alpha by 2 tan theta minus alpha by 2 equal to tan square beta by 2, tan square beta by 2. ये करना है प्रो, चलो है ना। क्वेश्चन को देख के कभी भी घबराना नहीं है ना, क्वेश्चन के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, हो जाएगा। सो नाउ व्हाट वी आर गिवन दैट cos theta इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा। अभी प्रूव क्या करना है वो चेक करो। सो हियर वी हैव टू प्रूव tan स्क्वायर बीटा बाय 2 है ना, बीटा बाय 2 इक्वल टू थीटा प्लस अल्फा के फॉर्म में आंसर आ रहा है। तो क्या करेंगे, वी आर राइटिंग और गिवन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ बीटा ओनली। सो cos बीटा विल बी cos थीटा अपॉन cos अल्फा। कहाँ से लॉजिक अप्लाई किया, जो प्रूव करना था ना उसमें से। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो थीटा अल्फा एक साइड है और बीटा दूसरी साइड है, तो यहाँ पर जो गिवन था उसमें से हमने वही कर दिया कि बीटा को एक साइड ले लिया, थीटा अल्फा को एक साइड कर दिया, डन। अभी बीटा चेक करो, मल्टीपल्स में आ रहा है ना, बीटा हमारा मल्टीपल्स में, सब मल्टीपल्स में। सो कॉस बीटा को सब मल्टीपल 10 में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, कॉस बीटा का फॉर्मूला सबको पता है। सो अवर कॉस बीटा इज 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बाय 2 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाय 2, डन। दिस इज इक्वल टू cos थीटा cos अल्फा, डन। अभी आगे देखो, अभी आगे ये थीटा एंड अल्फा, लेकिन थीटा प्लस अल्फा बाय 2 थीटा माइनस अल्फा बाय 2 हो रहा है, ये कब होगा, जब हमारा ये cos थीटा है ना, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला जब अप्लाई होगा तब। तो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला को लाने के लिए क्या करेंगे, अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। सो नाउ अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। सो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में क्या करते हैं हम, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का एडिशन सेम सीक्वेंस में करते हैं, उसी सीक्वेंस में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का सब्ट्रैक्शन करते हैं। सो हियर 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बाय 2 प्लस, इसको ऐड करना है न्यूमरेटर में, 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाय 2, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर किया, अभी न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करेंगे, तो इट्स 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बाय 2 माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बाय 2। और जो प्रोसेस हम लेफ्ट हैंड साइड पर करते हैं वही राइट हैंड साइड पर करना पड़ेगा। सो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, सो cos थीटा प्लस cos अल्फा अपॉन एडिशन किया, वही सीक्वेंस में सब्ट्रैक्शन करेंगे, सो इट्स cos थीटा माइनस cos अल्फा। दिस इज नोन एज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, डन। देखो क्या हुआ इससे, तो इससे हमारा माइनस tan स्क्वायर बीटा प्लस tan स्क्वायर बीटा कट हो गया, प्लस 1 माइनस कट हो गया। सो राइट हैंड साइड पर हमारा जो रिजल्ट आया वो आ गया है, क्या आया है, इट्स माइनस, इट्स 2 अपॉन माइनस tan स्क्वायर बीटा बाय 2 है ना, माइनस tan स्क्वायर बीटा बाय 2। सो माइनस 2 है ना, 1 माइनस 1 माइनस 2 tan स्क्वायर बीटा बाय 2 माइनस 2 tan स्क्वायर बीटा बाय 2। और देखो राइट हैंड साइड पर हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला है वो आ गया, c प्लस सी 2cc c माइनस सी माइनस 2ss। सो नाउ अप्लाइंग आवर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला cos थीटा प्लस cos अल्फा है ना, c प्लस सी 2cc, तो क्या होगा, इट्स 2 cos थीटा प्लस अल्फा बाय 2 cos थीटा माइनस अल्फा बाय 2, इट्स 2cc अपॉन c minus 2ss, so this will be minus 2 sin theta plus alpha by 2 minus 2ss sin theta minus alpha by 2, डन।
अभी इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या होगा, ये 2/-2 2/-2 कट हो गया, सो दिस इज 1/10 square beta by 2 and this is cos theta plus alpha by 2 and this one is cos theta minus alpha by 2 divide by this one is sin theta plus alpha by 2 and this one is sin theta minus alpha by 2। अभी जरा नजर डालो क्या प्रूव करना है। वी रिक्वायर 10 स्क्वायर बीटा बाई 2, ये तो डिनोमीटर में है ना, डिनोमीटर, सो रेसिप्रोकल कर दिया सबका, सो दिस वन इज 10 स्क्वायर बीटा बाई 2, ये आ गया। राइट हैंड साइड पर क्या होगा देखो, रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या होगा, दिस विल बी साइन थीटा प्लस अल्फा बाई 2 अपॉन cos theta plus alpha by 2 into this one is sin theta minus alpha by 2 upon cos theta minus alpha by 2, so hence we get our result 10 square beta by 2 sin by cos, which is nothing but the 10 theta plus alpha by 2 into 10 theta minus alpha by 2, done। so this we have to prove, ये हमें डिराइव करना है और हमने डिराइव कर दिया है बच्चों, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, so here in this fourth question we are given that if alpha and beta, we are given that if alpha and beta are distinct roots of a equation a cos theta plus b sin theta equal to c, then prove that sin alpha plus beta equal to 2ab upon a square plus b square, है ना, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल बेस्ड क्वेश्चन। क्लियर स्टूडेंट्स, चलो मैंने बोला आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं, वेरी सिंपल। सो नाउ व्हाट वी आर गिवन दैट अल्फा एंड बीटा आर two distinct root means alpha is not equal to beta, so alpha and beta are two distinct roots of a equation a cos theta plus b sin theta equal to c। तो रूट्स क्या करता है, अभी किसी भी इक्वेशन का रूट होगा जो उसको सॉल्व करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सो नाउ वी कैन से अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ कौन से इक्वेशन है, ए cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c। तो रूट्स हो गया तो क्या होगा, देयरफॉर वी कैन से ये अल्फा इसको सोल्व करेगा, तो दिस वन इज a cos अल्फा प्लस b sin अल्फा इक्वल टू c होगा, से रिजल्ट 1। सेम वे बीटा भी इसका सॉल्यूशन है ना, बीटा इज आल्सो रूट ऑफ दिस इक्वेशन, हेंस वी कैन से a cos बीटा प्लस b sin बीटा equal to say result 2। so here from result 1 and result 2, from result 1 and 2 we can say both the results are equal, है ना, we can compare the left hand side because both are equal to c, so comparing the left hand side we can say a cos alpha plus b sin alpha is equal to a cos beta plus b sin बीटा, ये दोनों इक्वल होंगे। अभी इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, डन। सो टेकिंग दैट राइट हैंड साइड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, राइट को लेफ्ट में ले लो, सो ए cos अल्फा प्लस b sin अल्फा माइनस a cos बीटा माइनस b sin बीटा, लेफ्ट से राइट में आएंगे तो माइनस ही होगा, है ना। अभी देखो माइनस में अभी क्या हो रहा है, हियर वी कैन टेक a कॉमन एंड हियर वी कैन टेक b कॉमन, तो जो हो रहा है उसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो हियर टेकिंग a कॉमन, सो इफ यू आर टेकिंग a कॉमन दिस विल बी cos अल्फा माइनस cos बीटा, cos अल्फा माइनस cos बीटा प्लस b कॉमन लेंगे तो क्या होगा,
साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इक्वल टू 0। डन। अभी ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला आ गया है ना, वो तो कहीं पर भी आएंगे। सो हियर a इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा c माइनस 2ss, इट्स अ माइनस 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस 2ss प्लस प्लस b s माइनस s 2cs, इट्स अ 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू 0। डन। चलो आगे फर्दर सिंप्लीफिकेशन। सो फॉर फर्दर सिंप्लीफिकेशन इसको अंदर मल्टीप्लाई करो। सो माइनस 2a साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 ये हो गया, तो कॉमन आ रहा है कुछ, यस, साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2, और ये 2 कॉमन आ रहा है ना, 2 कॉमन आ रहा है। सो 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज कॉमन टर्म। रिमेनिंग टर्म्स आर 2 ले लिया, इट्स अ माइनस ए साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 है ना, ये प्लस ये बी कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 विल बी रिमेनिंग टर्म। डन। एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये दोनों क्या हो गए, 0। तो ये दोनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है। अगर दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है दैट मींस दोनों में से कोई एक टर्म 0 होगा। लेकिन क्या हम बोल पाएंगे कि दिस 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज 0? दिस विल बी नॉट 0 है ना, ये कभी भी 0 नहीं होगा। साइन 0 कब होता है, जब साइन की वैल्यू एंगल की वैल्यू 0 होती है। और यहाँ पर साइन की एंगल की वैल्यू 0 कब होगी, व्हेन अल्फा इज इक्वल टू बीटा, है ना, तो ये 0 होगा। लेकिन अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, एंड हेंस ये साइन कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो 0 कौन होगा, ये वाली टर्म है ना, ये 0 होगी, तभी जाके हमारा मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट 0 आ रहा है। एंड देयरफॉर वी कैन से दिस टर्म इक्वल टू 0, है ना। इसको 0 से के साथ कंपेयर करवाए और माइनस ए को सामने भेज दे तो क्या होगा, सो दिस विल बी, है ना, ये टर्म को मैं लिख रहा हूँ, दिस विल बी बी कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, इसको मैं सामने ले जाऊं तो ये हो गया ए साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2। डन। अभी फर्दर सिंप्लीफिकेशन के मुझे ये वाला पार्ट मिटाना पड़ेगा। चलो इसको नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ले लिया, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। भी इसको मैं रिमूव कर रहा हूं, है ना, स्पेस की कमी। सो हियर वी कैन से, है ना, फ्रॉम दिस रिजल्ट वी कैन से कॉस, ये कॉस आइटम को डिनोमिनेटर में ले जाओ, सो दिस विल बी बी बाई ए इक्वल टू 10 अल्फा प्लस बीटा बाई 2। सो हियर वी गेट आवर सेकंड रिजल्ट। डन। 10 अल्फा प्लस बीटा बाई 2 आ गया, लेकिन हमें तो चाहिए साइन अल्फा प्लस बीटा। सो नाउ ये रिजल्ट को डिराइव करने के लिए, साइन अल्फा प्लस बीटा को डिराइव करने के लिए साइन को कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉस में। सो साइन एक्स इज नथिंग बट दी 2 tan x by 2, इट्स 2 tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2, 2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan square alpha plus beta by 2. So here we are putting the value of this tan alpha plus beta by 2 from this result number 2, which is equal to b by a. So this one is 2 into b by a upon 1 plus tan square alpha plus beta by 2 का square. So this one is b square by a square. So this one is 2b by a upon a square plus b square by a square. तो ए से ये ए गया और ये ऊपर आ गया, तो दिस वन इज 2ab अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। कौन सी वैल्यू है, दिस वन इज नथिंग बट दी साइन अल्फा प्लस बीटा। तो ये हमें डिराइव करना था स्टूडेंट्स, दिस रिजल्ट दैट वी हैव टू डिराइव, साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2ab अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। क्लियर स्टूडेंट्स?